Namaste everyone. Hello and welcome everyone to Healing MND India. Today is the session about Sergio. Sergio जो हमारे जानकारी के मुताबिक जो लास्ट रिवर्सल है उनके बारे में हम जानेंगे। उन्होंने क्या फिजिकल किया और क्या मेंटल एस्पेक्ट किया। तो हम आज सर्गियो के बारे में जानेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ सर्गियो from Ecuador. He was from a country. He is from a country called Ecuador. How he reversed his disease physically as well as mentally. If anybody wants to join Healing MND India, they can send an email with all their details on healingmnd@gmail.com. अगर किसको हीलिंग एमएनडी इंडिया में ज्वाइन होना है तो आप कृपया अपना नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर, अपने रिपोर्ट healingmnd@gmail.com ईमेल आईडी पे ईमेल कीजिए। थैंक यू। This is a big disclaimer that you need to take proper medical advice before acting upon any of the suggestions given in the presentation. आपसे अनुरोध है कि आप प्रेजेंटेशन में दिए गए सभी जानकारी को मेडिकल एडवाइस के बाद ही उसमें अमल कीजिए। No animals were harmed in the making of this video. No aliens as well as humans were harmed in the making of this video. No plants, trees, forests, rivers, lakes, oceans, planets were also harmed. Thank you all for joining. Let's start the presentation. Can somebody give me a thumbs up if they are able to see the Sergio presentation? कोई मुझे thumbs up देगा? ये Sergio नहीं 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 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है अभी। नो नॉट येट Okay, one second. Now, Yes. thank you. आप लोगों को बताना चाहता हूँ सर्गियो अभी हमारी जानकारी के हिसाब से लेटेस्ट रिवर्सल इन प्रोग्रेस है। इनफैक्ट वो 98-99% रिवर्स हो गया। अभी लास्ट वीक की हीलिंग एलिस में मीटिंग था तो हम सर्गियो के बारे में और भी जानेंगे। Sergio was diagnosed with ALS in
2015. This video is only for educational purpose. We are not medical professional and this is not a medical advice. ये healing ALS वाले का presentation है. Request everyone to do your own research, physical as well as mindset. Don't go about reading all the WhatsApp suggestions and all that. आप लोग भी हीलिंग एलएस पे जा सकते हो. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है when you register it is totally free on healing ALS. Then you go to where do I start, and in the Sunday recordings you can see all the videos and recordings. I am also a volunteer at healing ALS. आप मेरा नाम भी पढ़ सकते हो. Okay, Denise was a very good friend of mine. Denise expired last month. I think she was actually reversing, but she expired last month. She did not die of ALS. Her symptoms significantly were improving. She died of PE from undiagnosed DVT. I don't know the full form. Deep vein thrombosis. She had a deep vein thrombosis. Okay, आ गया अपना दोस्त हीरो सर्गियो. Sergio, he was at the age of 42. He was diagnosed in the year 2015. He couldn't walk. Half day he was on BiPAP and full night he was on BiPAP. He had a difficulty in swallowing. He had a lot of vesiculation and cramping. Today, आज की तारीख में is almost completely healed. इसके लिए मैंने 98% बोला. वो दिन में 5 किलोमीटर दौड़ता है. Yes, उन्होंने सिग्निफिकेंट मसल स्ट्रेंथ और मसल मास गेन किया है. आप नीचे राइट में उसका फोटो देख सकते हैं. जब भी उसको ज्यादा स्ट्रेस होता है तभी उसको वेस्कुलेशन रिटर्न होता है. बाकी उसको वेस्कुलेशन भी आजकल नहीं हो रहा है. बाईपैप का मीनिंग क्या रहता है? वो घर का होम बेस्ड वेंटिलेटर काइंड ऑफ. इट गिव्स यू ऑक्सीजन. ये कुछ काम है. ये दोनों है ही नहीं आज. ये टेबेटा है फ्रॉम ब्राजील. ये उसके फादर है और उसकी डॉटर है. उसका फादर का नाम है पेड्रो और पेड्रो भी अभी धीरे धीरे अपने आप को ठीक कर रहा है. अब ये देख सकते हो. ये बहुत बढ़िया एग्जांपल सर्गियो ने दिया है. डोंट फ्लाई इन सर्कल्स विथ ओनली वन विंग. मैंने देखा है लोग. अभी हम 2.5 महीना हो गया हम वो एक सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं. सबको बता रहे हैं.
अभी भी लोग सोच रहे हैं कि मैं ट्राई करूं कि नहीं, जब भी हमारे पास एग्जाम्पल है कि इतने लोग को फायदा हो रहा है, तो भी लोग सोच रहे हैं अरे सप्लीमेंट है, अच्छा नहीं होगा। और मेरे पास आते हैं और मैं मैसेज लिखते हैं, मेरे फादर की तबीयत बहुत खराब है सर, कुछ कीजिए। क्या कीजिए? अरे जो बताते हैं वो नहीं करते। To heal yourself, you have to be like a bird. To use your two wings to take the flight to freedom and find your balance to recover your physical, mental, spiritual, and emotional health. सर्गियो ने बताया कि 50% फिजिकल प्रोटोकॉल है, 50% स्पिरिचुअल एंड मेंटल चेंज है। द फिजिकल प्रोटोकॉल सिर्फ 50% है। It will help you slow down or at the best stop the progression of the disease. मतलब अपना जो फिजिकल एस्पेक्ट है, जैसे अपने फेसिकुलेशन बंद करना, अपना बॉडी में ये मसल लॉस बंद करना, वो सिर्फ 50%। वो अगर वो सिर्फ स्लो हो सकता है या मैक्सिमम स्टॉप हो सकता है, लेकिन जो अपने मेंटल ट्रॉमा है, मेंटल टेंशन है, मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल इश्यूज है, इमोशनल इश्यूज है, स्पिरिचुअल, वी आर लैगिंग बिहाइंड, आई एम माई सेल्फ लैगिंग बिहाइंड। तो ये अपना डिवाइन एसेंस है, अपनी डिवाइन एनर्जी है, अपना डिवाइन सोल है, जो अपने को क्योर और हील कर सकता है। अगर एक पंख नहीं होगा तो पक्षी उड़ नहीं पाएगा, वो गोल गोल घूम के गिर जाएगा। सर्गियो के सिम्टम्स चालू हुए 2013 में, ऑफिशियली डायग्नोज हुआ दिसंबर 2015 में। लेट 2015 में जब उसकी एज 42 थी, he was diagnosed with MND-ALS with involvement of the primary and the secondary motor neuron। इसका मतलब EMG में दोनों लिंग में डायग्नोज हुआ, अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। उसके इम्पोर्टेंट सिम्टम्स क्या थे? मसल क्रैम्पिंग था, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ राइट साइड, उसके स्पैसम्स आ रहे थे, लॉस ऑफ मोबिलिटी द राइट साइड, रेस्कुलेशन हो रहा था, swallowing में डिफिकल्टी थी, माइग्रेन्स आते थे, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी। पूरी रात और आधा दिन उसको बाईपेप यूज करना पड़ता था। उसका वजन कम हो गया, 84 किलो से 60 किलो। डिप्रेशन में चला गया। एट्रोफी ऑफ सम मसल्स मोस्टली इन राइट हैंड, मेरे को भी राइट हैंड में है, राइट आर्म में है, राइट शोल्डर में है, राइट नेक तो एक ही होता है, नेक में है और पैर में भी है। मेरे को ये मेरा राइट हैंड है, इसमें ज्यादा है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसमें थोड़ा कम है, बट दोनों में है। न्यूरोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था उसको
magnesium 300 mg, citalopram 10 mg, fresubin, redudex 50 mg, baclofen 10 mg, fentanyl, like Rica antidepressant cocktail, जो उसके कुछ भी काम नहीं आए। ये जो न्यूरोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था उसको कोई काम नहीं आया। तीन महीना उसने ये सब लिया और 3 महीने के बाद वो 100% डिसेबिलिटी में हैंडीकैप पेशेंट माना गया। उसके फर्स्ट सिम्टम्स 2013 में शुरू हुए। राइट आर्म विद पेन इन द राइट हैंड एंड आर्म। मेरी बात कहूँ तो मेरे को रेयरली कभी पेन हुआ है। मेरा आर्म में वीकनेस, हाथों में, पाम में, उंगलियों में ग्रिप कम हुआ और वीकनेस हुआ, लेकिन मुझे पेन रेयरली हुआ और मेरी फिंगर्स ट्विस्ट नहीं हुए। आप देख सकते हो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, स्ट्रेट है। आप और एक देख सकते हो, मेरा राइट हैंड, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज स्ट्रेट, नथिंग हैज बीन ट्विस्टेड। ज्यादा ट्विस्ट हो जाए तो बीबी को बोलो बेलन घुमा दे हाथों में। जोक्स अपार्ट, अपने को we should try and maintain our muscle movement. In 2014 में he began to lose strength. उन्होंने पैरों में स्ट्रेंथ, उसकी पैरों में स्ट्रेंथ जाने लगी, स्पेशली ऑन द राइट साइड। मेरे को दोनों में बराबर स्ट्रेंथ जा रही है। 2015 में उसके सिम्टम्स ज्यादा प्रोग्रेस हुए। उसकी आवाज ऑलमोस्ट पूरी चली गई। उसको सांस लेने में तकलीफ पड़ी। पूरी बॉडी में उसको क्रैम्पिंग हो रहा था, जैसे नेक और जबान में फेसिकुलेशन पूरी बॉडी में हो रहा था। और उसका वेट भी अब्रप्टली लॉस्ट हुआ। हाँ बोलिए महेंद्र जी, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। आपका रेज हैंड। ओके। 2015 में एंड में डॉक्टर लोगों ने रिकमेंड किया कि वो फीडिंग ट्यूब लगा दें और वो परमानेंट वाला वो बाईपैप परमानेंट लगा दें। तो सर्जियों ने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया। अभी स्विट्जरलैंड में एक सुविधा है कि आपको अगर सुसाइड करना है तो स्विट्जरलैंड जाके लीगली करवा सकते हैं। तो सर्जियो ने डिसीजन लिया कि भाई मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा असिस्टेड सुसाइड के लिए, बट उसकी वाइफ ने मना कर दी। थैंक्स टू हिज वाइफ कि आज वो इतनी बढ़िया थी, जिंदगी जी है। तो उसकी वाइफ ने बिल्कुल मना कर दिया और उसको बोला कि आपके पास, उसके पास और कोई चॉइस नहीं था, मतलब ये डिजीज से फाइट करना और फेस करना। अभी सर्गियो ने डिसाइड किया है कि 2016 जनवरी में कि अभी वो
अभी जो भी है अपनी हेल्थ का बागडोर अपने हाथों में लेगा और उसको पूरा अच्छी तरह ठीक करेगा। जनवरी 2016 में उन्होंने रिसर्च चालू किया और अल्टरनेटिव नेचुरल मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करने लगा। सर्गियो ने अपने हीलिंग एलएस वेबसाइट फाइंड की। अभी आप मानेंगे नहीं कि सर्गियो को इंग्लिश नहीं आता था, उसको सिर्फ स्पेनिश आता था। तो उसने हीलिंग एलएस की वेबसाइट को कॉपी किया, ट्रांसलेट किया और उसके बाद पढ़ा। उन्होंने हीलिंग एलएस वेबसाइट को उन्होंने उसको इंस्पायर किया और होप दिया। सर्गियो ने दूसरे लोगों का प्रोटोकॉल रिसर्च किया जिन्होंने रिवर्स किया था। फरवरी 2016 में he started CDS in water, that means chlorine dioxide aka MMS, miracle mineral solution, DMSO in high doses, cannabis in high doses. This actually resulted in slowdown in the progression of the disease and more time to continue investigation. ये सब लेने से उसकी बीमारी का प्रोग्रेशन स्लो हुआ और उसको टाइम दिया कि वो ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर सके कि अपनी बीमारी को कैसे हरा सके। 2017 में उन्होंने अपनी बीमारी का कारण पाया, मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि ये मेरी बीमारी का कारण है और उन्होंने रिसर्च किया कि ये मुझे प्रोटोकॉल अपनाना है जो मुझे हेल्प कर सकता है ये बीमारी को रिवर्स करने में। सर्गियो का खुद का ये कंक्लूजन है उसकी बीमारी का कॉजेज के बारे में कि उसकी बीमारी का कारण क्या हो सकता है। पुअर डाइट हो सकता है और एसिडिफिकेशन ऑफ द बॉडी, मतलब हम एसिडिक फूड खाते हैं उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। Contamination of heavy metals, especially mercury, for example, amalgam in the teeth. मैं आप सबको बोलता आया हूँ अगर आपको अमलगम फिलिंग है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है तो आपको एक बार चेक करवाना चाहिए हैवी मेटल टॉक्सिसिटी टेस्ट। उससे मालूम पड़ता है कि हमारे बॉडी में ब्लड में हैवी मेटल की कितनी मात्रा है, वो लिमिट के ऊपर तो नहीं है। लैक्टिक एसिड कंटामिनेशन इन द नर्वस सिस्टम, can be caused by root canals in the teeth and other soil. ये लैक्टिक एसिड रूट कैनाल से भी हो सकता है। हम हमारे दांत है जो नसों से जुड़े हुए होते हैं, नर्व कैनाल that joins with other organs and parts of the body। तो हमारी दांतों से जो नसें जुड़ी हुई है वो सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ज्वाइन होती है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और नेगेटिव थॉट्स है वो हमारे ग्रुप में सभी को है। मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ स्ट्रेस निकालिए, नेगेटिव थॉट्स पूरे निकाल दीजिए। पैरासाइट्स हो सकते हैं जैसे इंटेस्टाइन में, हाथों में पैरासाइट्स होते हैं, इंटेस्टिनल वर्म्स
फंगाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं एंड वायरसेस ऑफ द हर्पीस फैमिली। डिस्ट्रक्शन ऑफ बी विटामिन स्पेशली B6। B6 एक एसेंशियल है। ग्लूटामेट को भी ट्रांसफॉर्म टू ग्लूटामाइन विद अदर एमिनो एसिड। मतलब B6 से काम करता है ग्लूटामेट को ग्लूटामाइन में ट्रांसफॉर्म करने को दूसरे एमिनो एसिड्स के साथ, तो उसका B6 भी कम होगा। GABA is a neuroprotector of the nervous system. ये बहुत बढ़िया डायग्राम। हमारी दांतों हमारी दो दीत होते हैं, दांत होते हैं, और अपने बॉडी से उसका कैसे कनेक्शन होता है उसके बारे में ये डायग्राम है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। हमारी दांतों से जो नसें जाती है वो पूरे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होती है और ये पूरे बॉडी से कनेक्ट होता है नर्वस सिस्टम। तो ये हर एक चीज है, लंग है, हार्ट है, स्टमक है, लिवर है, किडनी है, एवरीथिंग इज देयर। ब्लैडर है, पैनक्रियास है। अपने दांतों और डिफरेंट ऑर्गन अपने बॉडी के हर एक पार्ट के साथ क्या उनका क्या मेल जोल है, how are they connected, relationship between teeth and the different organs of the body. It is very essential to keep our teeth, our gums, our ये अपना डेंटल फिलिंग, अपने दांतों को क्लीन प्रॉपर, because it is connected to all the parts of the body through the nervous system. इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उन्होंने क्या किया, 100% नेचुरल एंड वीगन डाइट चालू किया। कीटोजेनिक डाइट, जो फैट्स रिच इन ओमेगा होते हैं ना, वो सब खाने शुरू किया। Chelation therapy and elimination of heavy metals, elimination of parasites, worms like worms, fungi, bacteria and viruses, restoration of the intestinal flora, मतलब gut health, use of natural products supplementing with orthomolecular nutrition, मतलब जो जो विटामिन उसके बॉडी में नहीं थे वो हायर डोजेस में लेने लगा। Relaxation and meditation technique. So these are the basic things we started. First step, remove extract all dental fillings and dead teeth. जो दांतों में रूट कैनाल होते हैं उन सबको एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि उनमें से भी कनेक्शन है नर्वस सिस्टम में। लड़कियों ने 2 teeth रूट कैनाल वाले एक्सट्रैक्ट करवाए और दूसरे पास से
और दूसरे फिलिंग से भरवाएं। एलिमिनेट क्लीनिंग एंड पर्सनल हाइजीन केमिकल, मतलब जो हमारे पर्सनल हाइजीन में हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें केमिकल में जो हैवी मेटल होता है, केमिकल, ज्यादा केमिकल हमारे बॉडी को सूट नहीं करता, वो सब एलिमेंट की है। Eliminate processed foods that contain preservative, sweetener, sugar, vegetable oil, aspartame, gluten, nitrates, aluminum, fluorine, refined salt, etc. प्रोसेस्ड फूड्स खाना एकदम ही कम कर दिया, मतलब नील नहीं के बराबर। एलिमिनेट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, फ्राइड फूड, अपना मैकडोनल्ड्स और वो सब है ना फ्राइड फूड, कॉफी, अल्कोहल, टबैको, सब बंद कर देना। Eliminate meat and animal products such as milk or cheese. Adapt to a 100% vegan diet. अभी उसने क्या कंज्यूम करना शुरू किया? मेडिसिनल कैनबिस, CBD ऑयल और THC चालू किया 50-50 के रेशियो। कभी जरूरत पड़ती थी तो हायर CBD लेता था। Extra virgin coconut oil mixed with DMCO and essential oil. It was used as an ointment for the body. Daily a glass of गुनगुना पानी, बेकिंग सोडा और लेमन के साथ किसी ड्रिंक बना के पीता। बराबर है, सबको जिनको कोक और पेप्सी की आदत हो उनको एक फिजी ड्रिंक तो चाहिए, तो नींबू से बनाता। एंटीऑक्सीडेंट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फ्री रेडिकल, एंटीऑक्सीडेंट हमको भी लेना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल फूड, अगर वो नहीं है तो सप्लीमेंट के फॉर्म में। chelators to remove heavy metals from the body, for example selenium, SELENIUM. Selenium helps in binding heavy metals and it helps in removing them from the body. Implement a vegan and a genetically based diet rich in good fats and omega, मतलब एक प्रॉपर डाइट फॉलो करने लगा। और दो मॉलिक्यूलर मेडिसिन, स्पेसिफिक विटामिन एंड अमीनो एसिड्स इन हाई डोसेज, यह मतलब ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने सुझाए हुए जो मॉलिक्यूलर मेडिसिन है, जैसे कि अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, स्पेसिफिक विटामिन और अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी को चाहिए, उसके हाई डोसेज लेने लगा। कैनबिस, he started consuming medicinal cannabis, THC and CBD equal part 50-50, मतलब 50% CBD और 50% THC। सर्गियो ने अपने बहुत हाई डोज से शुरू किया। हम डॉक्टर आपको रिक्वेस्ट करते हैं आप डॉक्टर की सलाह लेके कम से कम डोज से चालू कीजिए। ये बंदा तो बहुत डेस्परेट था, उसको जान चली जाए तो भी उतना नहीं था, लेकिन उसको पहले तबीयत सुधारना था और ज्यादा ही रिस्क ले रहा था।
तो उसने तो बहुत हाई डोज लेना शुरू किया। अपने को हाई डोज नहीं लेना है, अपने को डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं उसके गाइडेंस और फॉलो अप पे ही काम करना है। उसको मतलब डेस्परेट इसके लिए था क्योंकि उसको बॉडी के फंक्शन बहुत जल्दी जा रहे थे और उसको जीना था। उसने एक ही बार में ज्यादा ही डोसेज ली। Even before legalization, he started with Sativex and eat it to remove alcohol. And the remainder he mixed with coconut oil rubbed inside mouth. मतलब मेरे हिसाब से उसको जब तक परमिशन नहीं मिला उसके पहले उसने सर्टिफिकेट लेना चालू किया और उसको गर्म करके उसमें से अल्कोहल निकाल रहा था। एंड और जो बचा कुचा था उसमें वो कोकोनट ऑयल मिक्स करके मुंह में लगा देता था। वंस लीगल ही मेड हिज ओन, मतलब उसको परमिशन मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से कि वो बना सकता है, तो ही स्टार्टेड, वो अपना खुद का सीबीडी ऑयल बनाने लगा और उसको कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करा। अभी आपको बताओ कि सीबीडी ऑयल और टीएचसी और प्लस कोकोनट ऑयल आप लेंगे तो इट में हेल्प इन क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर, जो हमारे में मेन प्रॉब्लम है। Very important. CBD oil plus DHC plus coconut oil, all three taken together can help pass the blood-brain barrier. Once the blood-brain barrier is passed, the neurons can start signaling the upper and the lower motor neuron, and it can help in regenerating muscle strength and even muscle mass. वो कैप्सूल बना के खाता था एक और 12 घंटे में, रात को 1 बजे और दोपहर को 1 बजे। He inhaled every 2 hours. He made tea if he could not inhale because of breathing. मतलब वो चाय बना रहा था, अगर वो ब्रीदिंग का इश्यू था ना। हाँ, वे प्रोटीन ले सकते भाई। मेडिसिनल कैनबिस के बारे में उसके सुझाव है। उन्होंने प्रोग्रेशन स्टॉप करने के लिए उन्होंने सीबीडी और टीएचसी 50-50% की रेशियो में लेना शुरू किया। जय भाई, हम बाद में थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? 2016, 17, 18 3 साल उसने बहुत हाई ये सीबीडी और डीएचसी लिए। इट वाज क्लियरली हेल्पिंग हिम। वो सीबीडी और डीएचसी उसको बहुत अच्छी तरह हेल्प कर रहा था अपने मसल के मूवमेंट में और अपने बॉडी के मूवमेंट में और मसल में। उसको बहुत इनिशियली बहुत ज्यादा वेसिकुलेशन हो रहे थे एंड पेन। ओके, ये है ना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज। अगर आप माइंडफुलनेस में रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे,
मैंने लास्ट सैटरडे लेना चालू किया, जब भी मेरे को डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मिला उसके बाद मैंने चालू किया सीपीडी और टीएच। बिकॉज आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ मेडिटेशन, आई कुड एक्चुअली फील कि मेरे नजल रीअवेक हो रहे हैं। अब अपने को कैसे चीटी काटती है, तो लाल चीटी, मुझे ऐसे फीलिंग आ रहा था हाथों में और थोड़ा थोड़ा पैरों में, शनिवार रात को और रविवार को। ये थोड़ा बंदा बंदा है ना, थोड़ा क्रेजी बंदा था। इसने क्या किया, तो सीबीडी और डीएचसी लेने और भारी मात्रा में लेना लगा, और उसके बाद वो फिजिकल थेरेपी और एक्सरसाइज भी कर रहा था। जैसे कि मतलब मैं अगर सीबीडी और डीएचसी ले रहा हूँ तो मैं ज्यादातर आराम करूं, लेकिन ये बंदा फिजिकल थेरेपी और एक्सरसाइज करने लगा। मतलब ही वॉज वेरी मच इनटू इट। उसको कैसे भी करके अपनी जान बचानी थी और लाइफ बढ़िया करनी थी। अभी वो सुझाव दे रहा है कि इनहेल, जो हम सांस में लेते हैं, बाय फ्यूम इन 1 drop wait 2 hours, then 2 drop wait 2 hours, continue all day until you feel the effect। पूरा दिन हाई रहो, घर पे रहो और हाई रहो। Try titrate according to your body। If over, you can chew on peppercorn। ये पेपरकॉर्न है, वो एंटीडोट है। अभी उसका उसने क्वेश्चन पूछा है कि 2 प्रकार के हैं सीपीटीटीएन। एक तो सतीबा है, एक है इंडिका। तो अगर कोई फर्क पड़ता है, अगर कोई भी हो, सर्गियो दोनों यूज करता है। मतलब एक में टीएचसी ज्यादा होता था, मेडिकेशन सेटिवैक्स उसमें दोनों होता था, और दूसरे में टीएचसी ज्यादा होता। ये हमारे इधर में मेरे को लगता नहीं है अलाउड है इनहेलिंग बर्ड। वो चाय पीता था, ड्रिंक टी, since he could not inhale because of breathing। पानी का 1 कप, उसमें कैनबिस का 1 बर्ड, 1 ग्राम का बर्ड ऐड करता था, कोकोनट ऑयल 1 टीस्पून ऐड करता। The cannabinoids are activated by the coconut oil and boil covered for 15 minutes। उसको बॉईल करता था, 15 मिनट रख के बॉईल करता था। रॉ carboxylated heated equal to decarboxylated। When you eat or vaporize, you are decarboxylating it। मतलब वो हीट गरम करके ही लेता था, हीट करके ही लेता था। अपने को यहाँ पे भी ऑप्शन लाइक कैप्सूल जो है, और अपने पास इन द फॉर्म ऑफ कैनबिस ऑयल है, लिक्विड। हम लिक्विड के फॉर्म में ले सकते हैं, मतलब ड्रॉप्स के फॉर्म में। ये एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो जो ले रहा था।
आप ये पहले कॉलम एंटीऑक्सीडेंट की लाइन में देखेंगे कोएंजाइम Q10 Q10 है लास्ट ऑप्शन Q10। ये Q10 मुझे मेरे डॉक्टर जिमी लाल काका ने लिख के दिया था। उन्होंने बोला था कि आपको लेना है, अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, नहीं तो स्टॉप करना। मुझे लगता है कि मैंने कोएंजाइम Q10 वो हल्का क्वालिटी वाला लिया होगा, इसलिए मैंने उस टाइम पे 1 महीना लेने के बाद बंद किया। अभी वापस उस पे ट्रायल चालू करना है। वाइटामिन, ये सब वाइटामिन वो ले रहा था, B1 D3 K2 मैग्नीशियम क्लोराइड जिंक क्रोम बोरेक्स नेड विटामिन ए, बहुत ज्यादा ही बहुत कुछ ले रहा था। अभी चिलेटर्स क्या होता है, जो कोरिएंडर जूस होता है, बाजरी जूस, क्लोरेला, सेलरी जूस, स्पिरुलिना और ग्रीन स्मूदी, ये क्या करते हैं, ये चिलेशन का काम करते हैं, हमारे बॉडी में हेवी मेटल को बाइंड करके बाहर निकालना है। बेंटोनाइट क्ले विद सेलियम जियोनाइट DMSO एक्टिवेटेड कार्बन गार्लिक ऑनियन सल्फर MSM ग्लूकोडाइन बहुत कुछ ले रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंटी पैरासिटामल, एंटी मोल्ड, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एसेंशियल ऑयल ले रहा था, कैप्सूल ले रहा था, ऑर्गेनो कैप्सूल, नीम कैप्सूल, मायरा कैप्सूल, बोसवे कैप्सूल, CDS कोलोडोल एंड मॉलिक्यूलर सिल्वर रोजन, ग्रेपफ्रूट सीड एक्सट्रैक्ट, स्टीविया। इसमें से मैं ग्रेपफ्रूट सीड एक्सट्रैक्ट ले रहा हूँ, क्रश पपाया सीड्स ले रहा हूँ, कोकोनट ऑयल ले रहा हूँ, एप्पल साइडर विनेगर ले रहा हूँ, ओमेगा 369 का एक कैप्सूल है वो ले रहा हूँ, ये पम्पकिन सीड वो सीड में स्मूदी में डाल के खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, फ्लैक्स सीड ले रहा हूँ, सनफ्लावर सीड ले रहा हूँ, चिया सीड ले रहा हूँ, वाटरमेलन सीड ले रहा हूँ, वो स्मूदी में डाल के, कोकोनट ऑयल खा रहा हूँ। प्रोबायोटिक में मैं याकुल्ट ले रहा हूँ, एसेंशियल एमिनो एसिड जो हमारे सप्लीमेंट में आ गया, ये सप्लीमेंट में ये भी आ गया, ग्रेपफ्रूट सीड एक्सट्रैक्ट। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ज्यादा ही कुछ ले रहा था। यहाँ पे तो एक चीज लेने की बात कर रहे हैं ग्रुप में, तो ग्रुप में लोग 50 बार सोचते हैं। चलो कोई बात नहीं, बहुत लोग हैं जो अभी ऑर्डर कर रहे हैं नया सप्लीमेंट। 9-10 लोगों को पूछा, 10 ने बोला हाँ हमको अच्छा हो रहा है, अभी मैं बाय करूंगा सप्लीमेंट। जब स्टॉक नहीं होता है तभी वो लोग आते हैं, मेरे को सप्लीमेंट चाहिए। अभी इसराइल से भी ऑर्डर आ रहे हैं। ओके, अदर रिकमेंडेशन फॉर
other recommendation for ways to return. अपना लीवर को प्रोटेक्ट करना है। लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने को एक ऑप्शन क्या है, टूट का। इसने क्या क्या यूज किया, मिल्क डीजल, डेंडेलियन, एबिसिंथे, आर्टिचोक एक्सेट्रा। मतलब बहुत ज्यादा ही सब कुछ यूज करना था। प्रोटेक्ट किडनी, पड्रॉक रूट, स्टोन ब्रेकर, ऑल्स्टे, डॉक्टर बॉश प्रोटोकॉल, अल्कलाइन सॉल्ट बाथ। आई थिंक हमको किसी ने बताया था कि हमको सॉल्ट से बात लेना चाहिए। For each liter of water, 20 grams of rock salt, 3 grams of magnesium chloride, and 1 gram of borax. अगर हम बात नहीं ले पाते तो छोटे से डब में अपनी पैर डाल के उसमें इनको अल्कलाइन सॉल्ट बाथ पैरों को धोना चाहिए। पैरों को उसमें ही रख के बैठना चाहिए कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। Daily nasal washes with saline solution, to which is added 1 drop of lavender essential oil and drop of tea tree essential oil. ये एसेंशियल ऑयल को भी यूज कर रहा था। Do not stop moving and perform physical therapy every day. अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा कि वो रूपल जी का सेशन था और एक दीप्ति जी का सेशन था। तभी मैंने आप सबको बताया था कि मैं नीचे गया था थोड़ा 400-500 मीटर दूर, जहाँ पे सलून है, हेयर कट और शेविंग के। उस दिन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 4 दिन एमएनडी ने मुझे बहुत परेशान किया। मेरे पैरों में बहुत दर्द था। मस्कुलर पेन वाज ट्रेमेंडस। फिर भी मैंने कोई भी गोलियां नहीं खाए। फिर संडे को मैं वापस गया जानबूझ के और पेन कम हो गया था। संडे को मैं जाके आया सेम जगह पे, मेरा पेन वापस नहीं है। उसके बाद मैं अभी तक 3 बार जा चुका हूँ और मेरे को एक बार उसने ट्राई किया एमएनडी ने पेन देने को, लेकिन वो अभी तक पेन है। इसका मतलब ये 5th पॉइंट इज वेरी इम्पोर्टेंट। Do not stop moving and performing physical therapy every day. आप घर पे कोई भी छोटा मोटा काम करते हो, आपको एक आइडिया भी बता दूं, अगर आपके हाथों में शक्ति कम है तो घर पे बोलो कि आप वो आटा गूंदने का भी काम कर सकते हो। It will give you a lot of strength in your fingers. Coconut head massage with coconut oil plus DMSO plus drop of at least 3 different essential oil indicated in the table. मतलब वो हेड मसाज करवाता था, इससे मन अपना शांत होता है। For each tablespoon of coconut oil, 11 drops of DMSO and 1 drop of essential oils are added. To avoid losing weight, especially with swallowing problems or feeding tube. मतलब एग्जाम्पल दिया, स्मूथी बनाता था, प्रोटीन एंड कैलोरी शेक, स्मूथीज टू अवॉइड लूजिंग वेट। 500 ml कोकोनट मिल्क लेता था, 1 टेबलस्पून ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, 3 टेबलस्पून ऑफ नेचुरल प्रोटीन पाउडर। हाँ भाई, हाँ जय पटेल, अगर हम
नेचुरल प्रोटीन यूज करे तो ज्यादा अच्छा है। प्लांट बेस्ड नेचुरल प्रोटीन, यहाँ कोई भी नेचुरल प्रोटीन, वे प्रोटीन यूज करने से बेटर है कि यूज नेचुरल प्रोटीन। 1 tablespoon of maca, which is rich in vitamin B. 1 tablespoon of cocoa powder. आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, डार्क चॉकलेट इज वेरी गुड फॉर अवर ऑल। 1 tablespoon of essential amino acids such as EAA or EVAA. 1 banana and other fruits of your choice such as mango, strawberry, blueberry. हर एक बेरी, मलबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, all are very good for MND patient. ये 3 फेज में करना चाहिए। वीकनिंग एंड चिलेशन पहले 1 से 3 महीना करो। अटैक एंड एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट 1 से 3 साल होना चाहिए। सर्दियों के केस में 3 साल लगा। और इंटेस्टाइनल रिपेयर एंड रिपॉपुलेशन, मतलब अभी भी उसका फेज ऑनगोइंग चालू। First phase of the protocol, weaken the microbial load and chillation. पहले माइक्रोबायल जो खराब बैक्टीरिया है और अपने में हेवी मेटल है, उसको चिलेशन से वीकन करना है। चेंज डाइट टू स्टॉप फीडिंग द पैरासाइट, मतलब हमारे में बैड बैक्टीरिया होते हैं, पैरासाइट होता है, उसके लिए अपने को डाइट चेंज करना और उनको अटैक करने के पहले उसको वीकन करना। Detoxify and extract heavy metals accumulated in the body. Remember to take antioxidants and vitamins. This phase can last between 1 to 3 months. मेरे हिसाब से मेरे को ये फेज 6 महीने तक चला। Attack and eliminate parasite. Here we implement the anti-parasitic. The diet and the chelation of the first phase are maintained. First phase नहीं phase, and vitamins and antioxidants are still being consumed. This is the longest phase and it depends on each person. In my case, they were almost 3 years. By ग्रुप मेंबर लोगों, सबर करो, थोड़ा रुको, ऐसे ही 1 महीने में ठीक नहीं हो जाएंगे। अभी कौशिक जी को कितना टाइम लगा? 3 साल लगा। हरिंदर को 2.5 साल होने को आया, 2 या 2.5। वो छोटी बच्ची जो लखनऊ में है, उनको भी 2.5-3 साल हुआ। तो आप बोलेंगे कि भाई 1 गोली खा लो और एकदम कल अमृत गोली, मतलब एकदम ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आपने इतने साल लगा दिए ना, कितने साल, आपका उम्र कितना है? 40 साल है। आपने 40 साल लगा दिए अपनी तबीयत को बर्बाद करने में। अभी 40 महीने तो दो उसको ठीक होने में। एलोपैथी वाले के पास कुछ जवाब नहीं है। Intestinal repair and repopulation day. When most of the symptoms have subsided, the intestine is repaired with dragon's blood, aloe vera and glutamine. Repopulate the gut using prebiotic and probiotic. ये सेम है, वीगन माइक्रोवेंटिलेशन सेम थिंग है। 3 महीना अटैक एंड एलिमिनेट पैरासाइट। सर्दियों को 3 साल लगा। इंटेस्टाइनल रिपेयर एंड रिपॉपुलेशन, वो तो पूरी जिंदगी चलता रहता है।
ये जब मशीन सर्गियो ने यूज किए थे हीलियोस वायलेट रे. These machines were used in the ancient medical procedure called electrotherapy. Electrotherapy is a technique that is encompassed within physical medicine. डॉक्टर आरती ये मत कीजिए ये लाइनिंग और सब. Electrotherapy is a technique that is encompassed within physical medicine and rehabilitation and is defined as the art and science of treating injuries and illnesses by means of electricity. आप देखेंगे उसने यहाँ पे ये पिक्चर में वायलेट रे है, इसको उंगली से करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है. Electromagnetic pulse apparatus. It is a neuromuscular magnetic stimulator. It is possible to selectively stimulate each muscle, including small muscles and deep muscles. It also serves to remove parasitic and lymph nodes. ये अपने मसल को स्टिमुलेट करता है. Back zapper. This module is used to purify the blood and internal organs, with the exception of intestines, of viruses, bacteria, microorganisms, and parasites. NovaPhone Pro, adequate apparatus for both use in speech therapy and ergotherapy. Its soft vibrations help me to detach the throat by movement. ये सब डिवाइस है उन्होंने यूज किए थे अपनी बॉडी को ठीक करने में. अब देख सकते हो 2014 में उनका फोटो, 2015 में कैसा था. जिस दिन डायग्नोज हुआ उस दिन का फोटो दिसंबर 2015. 2016 में उसका फोटो. प्रोटोकॉल के रिजल्ट देखिए. समर ऑफ 2017 वो और उसकी वाइफ वो व्हीलचेयर पे बैठा है. विंटर ऑफ 2017 खड़ा हो गया. ही इज स्टैंडिंग अप ऑन हिज ओन फीट. वेरी गुड. इनफैक्ट अपने को ताली ताली बजाना चाहिए ये बंदे के लिए. लेकिन ये बंदे ने बहुत ज्यादा रिस्क लिया है, अपने को वो नहीं ले सकता. फॉल ऑफ 2017 देखो वो स्माइल कर रहा है, उसके हाथों में बिल्ली है. समर ऑफ 2018 स्विमिंग के लिए भी जाना है, पानी में गया. विंटर ऑफ 2021 ये ब्लैक बेल्ट कुंफू कराटे कुछ किया लगता है उसने. और अप्रैल ऑफ 2021 अपना बॉडी उसने दिखाया. Again he is emphasizing more on this thing. डोंट फ्लाई इन सर्कल. अगर एक बाग से उड़ेंगे तो आप सर्कल में ही फ्लाई करते रहेंगे. You need to do physical as well as spiritual and mental detoxification.
हाँ जय पटेल जी, आपका क्वेश्चन था कि वे प्रोटीन यूज कर सकते हैं कि नहीं। वे प्रोटीन यूज करने से बेटर है कि वी शुड यूज नेचुरल फूड बेस्ड प्रोटीन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन। आई थिंक अलका जी वो यूज कर रहे हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन। एम आई राइट अलका जी? Yes, Pinakin ji, I'm using plant-based. ओके, तो जय पटेल आपको जवाब मिल गया। आप नहीं तो अनम्यूट कर सकते हो, आपको कुछ पूछना है। प्रोटीन हमारे एमएनडी पेशेंट को ऑलमोस्ट 1.5 से 2 गुना प्रोटीन चाहिए होता है। इट इज बेटर दैट वी टेक मोर एंड मोर प्रोटीन, बट वी शुड आल्सो बी ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर। I will take more time today and आज ही उसका मेंटल वो भी मैं कंप्लीट करूँ। ये उसका पहले का डिटेल है, वो सबको पता है। I'll just skip the same slides which are coming again and again. Yeah, I think I missed this page. ये ऑल्टरनेटिव डिवाइसेस उसने यूज किए थे। जॉर्ज एरकोविच MW मल्टीवेव ऑसिलेटर। It is a resonant device that suddenly produces a wide spectrum of frequencies with harmonics which help to regenerate the affected part. इसका और एक सॉल्यूशन है, हम YouTube पे देखते हैं बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होती, साउंड फ्रीक्वेंसी। We should listen to those different sound frequencies. Alpha waves, alpha frequency, beta frequency, theta frequency. All these frequencies, once we go into that, it can help rejuvenate our mind and reprogram our subconscious mind. ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बट इट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। और अगर आपको ये माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का पार्ट लेना है तो आपको इंटरनेट के अलावा और कोई खर्चा नहीं हुआ। 0 रुपीज में आप अपने आप को हील कर सकते हैं। Boswellia serrata। हाँ सर, ओके सर बोल रहे कि आरडी प्रसाद सर बोल रहे कि बोसवेलिया सेराटा यूज करने पर बॉडी इन्फ्लेमेशन होता है। उन्होंने ट्राई किया था तो वो हम सबको सुझाव दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक मैंने वो एक मिनट में दूसरा प्रेजेंटेशन।
I think I have got the same presentation again. One second. सॉरी, अब मुझे टाइम लग रहा है, बट आई थिंक थोड़ा कोई प्रेजेंटेशन में दीजिए। ओके, अभी मेरे पास मेंटल उसका प्रेजेंटेशन नहीं है, बट आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग एंड्रेस करके अनम्यूट करके पूछ सकते हो। मैं प्लीज गो अहेड एंड आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू। मुझे लगता है कि सर्गियो ने बहुत ज्यादा ही रिस्क लेके अपनी जान को जोखिम में डाल के ये सब ट्राई किया। और हमारे ग्रुप में भी, हीलिंग एलएस में भी लोग बोलते कि ने बहुत मतलब बहुत रिस्क लिया है, इतना ज्यादा सीबीडी वाला वो सब नहीं लेना चाहिए। इट कैन इवन हार्म योर बॉडी, सो इट इज बेटर आप डॉक्टर की सलाह लेके ही। और किसी को कोई क्वेश्चन है? एनीबॉडी हैज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग सर्गियो? आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। बाय द वे, मैं कल है ना टोनी एम्बर लजारस का सेशन रखने वाला हूँ, उसका भी प्रेजेंटेशन आ गया है मेरे पास। और परसों मैं मार्क मैनचेस्टर का प्रेजेंटेशन बताने वाला हूँ। अभी आप लोग इसमें डिसाइड कीजिए, तीनों का रिवर्सल हुआ है, तीनों ने क्या क्या कॉमन चीजें यूज की हैं, तीनों के प्रोटोकॉल में क्या क्या कॉमन है। और ये नहीं है कि अपने को सब कुछ करना है, ये इन्होंने तो बहुत कुछ किया। अब मेरा ये मानना है कि अपने को देखना है हमारे बॉडी के लिए क्या सूटेबल है। हमारे बॉडी को अगर डिटॉक्सिफिकेशन का जरूरत है वो कीजिए, हमारे बॉडी को जो जो चीज की जरूरत है वो करना चाहिए। अभी जैसे मैं ये करता हूँ, आपने ये देखा है, आप देख सकते हो मैं दिख रहा हूँ। मैं कैन यू सी मी? ये देखिए, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने में ये काम आता है। ये छोटी छोटी चीजें घर में होती है, वी कैन यूज ऑल दैट, नो नीड टू स्पेंड। खर्चा करने की जरूरत नहीं है, घर पे सब कुछ होता है। अगर नहीं है तो मुझे बोल बताना, मैं आपको लिंक भेजूंगा सस्ते में सस्ता। अपना एक वो स्पॉन्ज बॉल आता है, वॉर्म बॉल, उससे अपने हाथों की एक्सरसाइज करनी है। ये मैंने पूरा किट मंगाया था, आई थिंक 250-300 में आ गया था। ये भी था, ये उंगली डाल के उंगली स्ट्रेच कर सकते हैं। ये तो सब, ये सबके घर पे होता है। क्लिप, तो कपड़े सुखाने की क्लिप। अभी आपको एक मैजिकल चीज दिखाता हूँ।
आप लोग बहुत लोग बोलते हो ना, पेशेंट लोग, कि मेरे को कौन हेल्प करेगा, मेरा मदद कौन करेगा। खुद की मदद करना शुरू कीजिए। भी अगर हम दूसरों पे करेंगे तो हम अपनी मदद कैसे करेंगे। वो भी इंसान है, दे ऑल्सो हैव लाइफ। थोड़ा समझो यार। ये देखिए, ये अभी मैंने किया, आपको दिख रहा है। कोई बोलो भाई, हाँ हाँ तो बोलो। प्रिया जी, मेरा ये दिख रहा है, मेरा एक्यूप्रेशर। प्रिया, लोग सो गए घोड़े बेच के। अरे, am I audible to everyone? Yes, yes, you are audible. हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है. गौतम भाई केम जो, अनम्यूट अनम्यूट करो। गेम जो द मैन। गुड गुड। ये देखो, ये है ना, दिस दिस एक्चुअली, ये दिख रहा है मेरे कैमरे में। दिस हेल्प्स इन एक्यूप्रेशर। ये जो, हाँ, मैंने भी यूज किया था। हाँ हाँ, तो ये बहुत हेल्प करता है। आप मानेंगे नहीं, मैं मेरा छोटा बेटा तो अभी यूएस में है। पता नहीं आप लोगों ये मैं अपने हाथ से करता हूँ। को मोटा होता है। हाथ मानो होता है मोरवार तो नाना होता क्या ना सकता हूँ। मेरे किट के अंदर 2 आए थे, एक गुम हो गया, लेकिन बहुत अच्छा है, ये ब्लड सर्कुलेशन करने में हेल्प करता है। और ये देखो, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो घर में। मैं इधर मेडिटेशन करते करते ये सब करता रहता हूँ। I'll show you one more thing. ये देखो, बाकी सबको पहले म्यूट कर दो आप. अलका जी म्यूट कीजिए प्लीज। एक मिनट मैं करता हूँ। ये सब छोटी छोटी चीजें करनी पड़े। घोड़े बेच के बैठ गए तो कोई अपने को ठीक करने नहीं आएगा। घर घर के कामों में हाथ बढ़ाओ जितना हो सकता है। और
मैंने 1000 रुपए में 10 टी शर्ट खरीदे थे। हर एक टी शर्ट में उसमें बहुत बढ़िया चीज लिखा हुआ था। आपको वो चाहिए तो उसका भी लिंक मैं बेच सकता हूँ अमेजोन में। 1000 रुपए में 10 टी शर्ट और कपड़ा भी अच्छा था, मतलब एकदम हाई फाई नहीं है, H&M और वो लीवाइस। और तो आप किसी को भी और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। कल मैं टोनी एम्बर लजारेस का करने वाला हूँ, इसके बाद मार्क मैनचेस्टर का। तीनों ने CBD ऑयल तो लिया है, मेरे को इतना पता है। आपको और कोई क्वेश्चन है? एनीबडी हैज अ क्वेश्चन? ये स्पायरोमीटर का भी लिंक चाहिए तो हाँ मैं भेजूंगा सर, मैं पक्का भेजूंगा आपको लिंक टी शर्ट का। और स्पायरोमीटर के लिए लिंक चाहिए तो बोलो। ये 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 वाले का, इसका भी पूरा एक किट आया था, उसका भी लिंक चाहिए तो बोलो। ये मैंने अलग से खरीदा था लेकिन आज तक यूज नहीं कर पाया। इसको रेजिस्टेंस बैंड बोलते हैं। यूज किया नहीं है कि कर पाए नहीं हो आप? नहीं कर पाया वो, ट्राई किया था मैंने वो रेजिस्टेंस बैंड, लेकिन ये वो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला है। मेरे को थोड़ा इसे वो मेरी फिजियोथेरेपिस्ट लेके आती थी, वो बढ़िया था। जो टोनी जो सर्गियो ने किया वो मैंने किया। मैंने ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त से मैंने आपको बताया कि मैंने डिटॉक्सिफाइंग शुरू किया। काव यूरिन पिया, फिर अपना वो हिमालयन बेरी पिया जूस, उसमें ऑक्सीजन होता है। उसके बाद मैंने करक्यूमिन बहुत पिया। करक्यूमिन तो मतलब जबरदस्ती पिया, मतलब मेरे को बहुत पसंद था। गर्म पानी में करक्यूमिन मेरे पास वो है, वो ड्रॉप्स फॉर्म में, बूंदे, 4 बूंदे 2 बूंदे डाल के मैं पीता हूँ। तुलसी के ड्रॉप्स। और मैंने अपना मोरिंगा टैबलेट खाया, स्पिरुलिना टैबलेट खाया, ओमेगा 369 का। आई थिंक 4 से 5 महीना मैंने वो लिया। उसके बाद मैंने लिप्टोप्रिड चालू किया, एल्सेरिन चालू किया, टूटका चालू किया, और कोकोनट ऑयल मैंने पहले से ही चालू करना है। लेकिन ऑन एंड ऑफ मैं लेता रहा। अभी एक चीज है, मैं 2.5-3 महीने से मेडिटेशन कर रहा हूँ। मेडिटेशन से मेरा माइंड एकदम शांत हो गया। माई माइंड इज टोटली एट पीस, किसी के बारे में सोचना नहीं। मेडिटेशन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आपको जो करना है करो, लेकिन अब मेडिटेशन करते रहो। हाँ हाँ सर, हाँ CBD ऑयल से आप मानेंगे नहीं, मैं अभी कभी कभार 11-11 घंटे सोता हूँ, दिन भर भी सोता रहता हूँ। अभी ये सेशन खत्म होने के बाद मैं वापस सो जाऊंगा। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। और अगर मेरे पास जवाब नहीं है तो मैं
हीलिंग एलएस में या सर्गियो से पूछ के आपको बता सकना। ये हमारी लाइफ है, अपने को लाइफ अचीव करनी। और किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे एंड ज्वाइनिंग मी इन दिस मीटिंग। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं YGX ले रहा हूँ। नहीं सर, YGX से मेरे को बहुत फायदा है। मैं और एक नया सप्लीमेंट लॉन्च करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ। 2 दिन के बाद मोस्टली संडे को एक बड़ा मीटिंग होने वाला है। हो सके तो संडे का मीटिंग अटेंड करना हो। कल और परसों और टोनी एम्बर लजारस जो आयरलैंड से, उसने भी रिवर्स किया है। और ने भी reverse किया है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो भी YGX ले रहे हो, आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन के साथ लेंगे तो उसका फायदा ज्यादा होगा। और जो भी करेंगे ना, हो सके उतना पॉजिटिव माइंड रखें, पॉजिटिव मेडिटेशन कीजिए। आपको मैं बोलता हूँ आपकी गारंटीड लाइफ में सुधार होगा। थैंक यू ऑल। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे।